English as literature, what kind of functions it can perform. This is the second part. Third function which we can see English as literature develop among the students is the ability to read, their interest in reading and their reading habit. Once students they start reading piece of literature and they start learning about stories of people around the world which are different from their world and the experiences of people, they start loving all literature pieces and they start looking for the readings which will further enrich their experiences. पढ़ने के साथ साथ जहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं और मालूमात में इजाफा होता चला जाता है और इंग्लिश की रीडिंग की एबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है, तो इसके साथ साथ बच्चों में ये इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि फर्दर रीडिंग करें और फर्दर अपने एक्सपीरियंस को और अपने नॉलेज को एनरिच करें. जैसे जैसे रीडिंग की हैबिट बढ़ती जाती है, इंटरेस्ट डेवलप होने के साथ साथ बच्चे में ये एबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो कहीं भी पीस ऑफ पेपर जो लिटरेचर का उसे मिलेगा, खा ये मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो, कहीं पर भी हो वो उसे पढ़ने की कोशिश करेगा. लिहाजा इस किस्म का फंक्शन अगर रिपोर्ट में दिया गया है तो फिर हमें देखना है कि किस किस्म का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं. Fourth function which English as literature can perform is the ability to appreciate. किसी भी चीज़ की तारीफ करना, अच्छा पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ के उसकी अच्छाई बयान करना और एक्सप्रेस करने की एबिलिटी डेवलप कर लेना, ये इंग्लिश एज लिटरेचर की वजह से ही आता है. जब आप इंग्लिश एज लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आप कम्युनिकेशन सीख रहे हैं और आप एक्सप्रेशन का तरीका सीखते हैं. जब आप इंग्लिश एज लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ने के बाद उसको अप्रिशिएट करते हैं और यही एबिलिटी बच्चों में डेवलप हो जाती है. नाउ वंस दे लर्न दिस ability to appreciate, it is an opportunity for significant emotional reactions to literary forms. किस किस्म की कोई भी तहरीर है, इंग्लिश में है, उसके बारे में किस तरह से रिएक्ट किया जाए और किस किस्म के इमोशंस को और कैसे एक्सप्रेस किया जाए. बच्चा अपनी थॉट्स और क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करते हुए रीडिंग के किसी भी एक्सपीरियंस को उसकी अच्छाई या बुराई को बयान करता है. जब हम अच्छाई या बुराई की बात करते हैं तो हम इसमें ख़ास तौर पर लिटरेचर के रेफरेंस से देखते हैं कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को या सिचुएशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है और उन एक्सपीरियंसेस पर किस तरह से बच्चा रिएक्ट करता है और स्टोरी की अच्छाई या बुराई और उसके एक्सपीरियंसेस को बयान करने के तरीके को किस तरह से अप्रिशिएट करता है. Once a child is reading through the literature pieces, he or she develops this ability of appreciating any kind of writing after going through it and starts looking for further literature. So, English as literature and English as language, they supplement each other. Next important step is that how we are going to draw any kind of objectives from these things. Once we have seen that English as language and English as literature, it is developing as a standard and it develops the ability to like the literature and to develop a positive taste for the literature and reading. Once these habits are being developed among the kids and they start liking it, we have to see that after these reports which are given all this information, what kind of objectives we can draw from them. We have looked into the suggestions which are given by the subject specialists in the reports. And we have seen that English as language and literature can contribute and can perform certain educational purposes or functions. Next thing is how we as curriculum developers are going to draw any inferences from these reports. Major function what a subject can perform through language and literature. The task is to first of all look into the reports, read through it carefully and then analyze all the functions of language and literature and then see how these suit to our environment. What possible contribution language and literature can make to the kids as kids or in the adolescence life or as adults. जब आप इंग्लिश को एज सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और एज लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो करिकुलम डेवलपर्स को ये देखना पड़ेगा कि अगर हम इसको एक पॉसिबल ऑब्जेक्टिव के तौर पर शामिल करना चाहते हैं तो इसकी कंट्रीब्यूशन किस किस लेवल पर होगी. जब आप क्लासरूम में बच्चे को एज ए चाइल्ड पढ़ा रहे हैं, आज का पढ़ा हुआ कल इसकी एडोलेसेंस लाइफ में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा
और एडोलेसेंस लाइफ के लेसन्स जो उसने लिटरेचर और लैंग्वेज में सीखे हैं किस तरह से उसकी एडल्ट लाइफ पर असरअंदाज होगा. सो वी विल हैव टू कंडक्ट दिस डिटेल्ड एनालिसिस. Then all these suggested objectives are to be looked into carefully, that what kind of knowledge is to be developed through these objectives which we are trying to propose for the curriculum, what kind of skills they are to be developed, and what kind of habits and attitudes it will inculcate among the kids. So आपने एनालिसिस कर लिया रिपोर्ट का, आपने सजेशंस को पढ़ लिया. हमने सजेशंस को एनालाइज करते हुए ये फैसला किया कि किस तरह से ये कंटेंट जो हम नॉलेज के तौर पे पढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से ये बच्चों में मुख्तलिफ स्किल्स को डेवलप करेगा और कौन से वो एटीट्यूड डेवलप करेगा जो उनकी आज की ज़िंदगी में एज चिल्ड्रन और उनकी एडल्ट लाइफ में एज यूजफुल सिटीजन्स ऑफ एनी सोसाइटी किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा. सो इन तमाम चीज़ों को हम डिफाइन करते हुए फिर प्रोपोज करते हैं कि ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश एज लिटरेचर के सब्जेक्ट में या इंग्लिश सब्जेक्ट में इसको शामिल कर देना चाहिए या करिकुलम में एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको शामिल किया जा सकता है. लिहाजा रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद हमने ये सब सजेस्ट करना है कि इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स की सजेशंस हमें रिपोर्ट से मिलती हैं और फिर हमने ये देखना है कि हमारे मुआशरे में और हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए किस किस्म का ऑब्जेक्टिव यूजफुल हो सकता है जब हम इंग्लिश को एज लिटरेचर और लैंग्वेज अपने क्लासरूम में पढ़ाना चाहते हैं.